here जो स्प्रिंग्स वेव्स होते हैं, आई टेल यू दिस, जो स्प्रिंग वेव्स होते हैं, इफ आई एम कंसीडरिंग द वेव्स ऑन द स्प्रिंग, तो उसके कंप्रेशंस रेडिफेक्शंस होते हैं। अगर यहां पर एक कार्डबोर्ड में ले लेता हूं, इसके ऊपर एक स्लिट बनाया है, इसके थ्रू स्प्रिंग पास हो जाता है और यहां पर कंप्रेशन रेडिफेक्शन होता है, तो क्या ये वेव आगे पास होगा? नहीं होगा। इन विच टाइप ऑफ वेव दिस इज पॉसिबल? It is only possible in these transverse types of waves. Yes or no? So the transverse wave nature is confirmed by the polarization. Is this clear to all? जहां पर आप उसका plane of vibration restrict कर सकते हो. Is that clear to all? ठीक है, next question number 84. क्या दिया है यहाँ पे? They say if the angle of the angle between the pass axis of polarizer and the analyzer is 45 डिग्री. पोलराइजर एंड एनालाइजर, ये पोलराइजर क्या होता है? जो पहला फिल्टर होता है ना, उसे कहते हैं पोलराइजर. तो फर्स्ट फिल्टर पोलराइजर, एंड सेकंड फिल्टर जो होता है, जिसका ये समझो कि एक्सेस है, दिस इज एनालाइजर. ठीक है, और उसमें जो एंगल होता है जिसको हम फाई कहते हैं, थीटा कहते हैं, आई गेस. करेक्ट ना? कल हमने जो देखा था उसके हिसाब से दिस इज थीटा, isn't it? So this angle theta is equal to 45 degree, isn't it? Now the intensity of the light, the ratio of intensities of the original light and the transmitted light after passing through the analyzer is, कैसा करेंगे इसको? होगा ओरिजिनल इंटेंसिटी इज I0 आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर, यहां पर आएगा I0/2. सेकेंड पोलराइजर के बाद I2 इज इक्वल टू, इट इज I1 टाइम्स cos square of theta, correct? But I1 is equal to I0/2 into cos square of 45 degree. Is this clear? So that is equal to I0 upon 2 cos 45 1 upon root 2, 1 upon root 2 का square 1/2. Therefore what will be I2 upon I0 is 1:4. Is this clear to all? So what is the answer here? D. Any doubts about that? समझ में आ गया सबको? D is the answer. B नहीं है, D is the answer. हाँ, 85 का. The angle between the angle between pass axis of polarizer and analyzer, ये जो axis होता है इसको pass axis कहेंगे, is 45 degree. The percentage of polarized light passing through the analyzer is, देखिए यहाँ का जो लाइट है, अगर इसको 100% बोलोगे तो इसका कितना परसेंटेज इधर आता है? 50%. और इसका कितना परसेंट इधर आएगा? 1/4, मतलब 25%. So what will be the answer here? B is the answer. समझ में आ गया सबको? Is that clear? Is this okay? Question number 86. A transparent medium, a thin plate of polaroid is placed on another similar plate such that the angle between their axis is 30 degree. A theta is equal to 30 degree. Correct है? The intensities of emergent and the unpolarized incident light will be in the ratio. देखिए क्या होगा यहाँ पर? I0 होगा पहला, I1 is equal to I0/2 and I2 is equal to I0/2 times cos square of theta. सही है ना? That is I0/2 times cos square of 30 degree. Cos 30 is √3/2. ये होगा 3/4, 3/8. So I0 into 3/8. So what is the ratio of I2? √3/2 का स्क्वायर है ना मामू? √3/2 का स्क्वायर है ना वहां पे? हाँ, तो 4 into 2 is 8 आएगा ना, वैसा भी होता है. So this is 3:8. Is this clear to all? So the answer here is D. Any doubts about that? Hello. जेपना है? Okay. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, आप लोग देख के जरा बताइए मुझे. I don't know. Let's see.
Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square, unpolarized light, passes through the three polarizers such that the transmission axis of first is crossed with third. Oh teri. First is crossed with third. If the intensity of emerging light is 2 watt per meter square, what is the angle? Intensity of emerging light is 2 watt. What is the angle of transmission axis between the first two polarizers? कैसे करेंगे? क्रॉस मतलब क्या? परपेंडिकुलर है, isn't it? थीटा be the angle. ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये पहला पोलराइजर है, दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, सेकेंड पोलराइजर, थर्ड पोलराइजर, ठीक है. सो चेक हियर, दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, सेकेंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट और सेकेंड पोलराइजर के जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलराइजर, तो उसके एक्सिस में जो एंगल है ये थीटा है, और थर्ड का एक्सिस और सेकंड का एक्सिस, इसमें एंगल है 90 माइनस थीटा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? करेक्ट ना? क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दे आर क्रॉस, ये पहले का एक्सिस, ये दूसरे का एक्सिस और ये तीसरे का एक्सिस. इज दैट अंडरस्टूड? समझे? सो जो इंटेंसिटी यहां से आ रहा है, ये पहला पोलराइजर, यहाँ का इंटेंसिटी है I, अनपोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी I0 इज इक्वल टू 32 वाट पर मीटर स्क्वायर. फिर यहां पर आएगा I1. I1 क्या आएगा जी? I1 इज इक्वल टू I0 बाई 2. फर्स्ट पोलराइजर में स्ट्रेट अवे आधा होता है. अब फर्स्ट से सेकंड में कितना जाएगा देखिए, फर्स्ट से सेकंड में इधर जो आएगा इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज I0 बाई 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. और यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा I3 इज इक्वल टू क्या होगा? इट विल बी I0 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा into cos square of 90 minus theta. Did you understand this? हाँ जो भी है, and this is given to be 2 watt per meter square. ये दिया है 2 watt per meter square after coming emerging light. तो I want to find out what is this angle theta. Did you understand that? ठीक है, तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं I0 is equal to 32. So I would say that 32 upon 2 into cos square of theta into cos of 90 minus theta is sin theta, so this will become sin square theta is equal to 2. So this is 216 and 2 8s 8 आ गया इधर, ठीक है. तो इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, ये 4 है इसके साथ जोड़ दूंगा, तो दिस इज 2 sin theta cos theta ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So this is sin 2 theta का स्क्वायर is equal to 1 upon 2, and therefore sin 2 theta is equal to 1 upon root 2. Therefore 2 theta is equal to 45 degree, and therefore theta is equal to 22.5 degree. So what is the answer here? C. C is the answer. Any doubts about that? जब आप लोगों ने शुरुआत में देखा था तो आंसर आपका क्या बोला था आप लोगों ने? 0, 45, 90. समझ में आ गया? Is that clear? ठीक है, ओके. अगला क्वेश्चन, a light, idiot, light from sodium vapor lamp is made to pass through two polaroids placed one after other in the path of light, taking intensity of incident light as 100%, intensity of the outcoming light that can be varied in the range. इसका रेंज, if I0 is equal to 100, फर्स्ट पोलराइड, तो फर्स्ट पोलराइड के बाद एनी हाउ आपने कहा कितना इंटेंसिटी होता है? वो 50%. फर्स्ट पोलराइड के बाद 50% होता है, एक्चुअली इट इज I0 upon 2. सेकेंड पोलराइड जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसका एक्सिस कितना है.
उसका एक्सिस कितना है, थीटा पर अगर उसका एक्सिस होगा तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द सेक आफ्टर पासिंग थ्रू, विल बी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये बोला है उन्होंने। अब ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा? 92। थीटा कैन वेरी फ्रॉम कहां से कहां, 0 to 90, 90 है ना। एक सेकंड, 0 to 90 कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। इफ cos थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो cos थीटा कहां से कहां वेरी करेगा फिर, है cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा फिर? अरे थीटा इज 0 to 180 बाबा, cos थीटा बताइए। cos समझते हो, cos 0 क्या 90 होता है क्या? हाँ, तो cos 0 इज 1 2 1 to -1, तो cos स्क्वायर थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? 1 to 0। कैसे 1 to 1? तो वेरिएशन उसका मुझे चाहिए। 1 to 1 नहीं बोलते, 1 to 1 तो 1 से शुरू होके 1 पे ही खत्म हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू इन वेरिएशन। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू? इट विल बी 0 to 1, ऐसा कुछ होगा, राइट ना। cos square theta is going from 0 to 1, is this clear? करेक्ट ना। तो I2 जो के I0/2 cos square theta है, मतलब I0/2 we have already said that this is 50%, 50% है, तो cos square theta का वैल्यू के हिसाब से ये कहां से कहां वेरी करेगा? when cos square theta is 0 तो ये भी 0 होगा, and when cos square theta is 1 तो ये 50% होगा। so this is the variation of I2। did you understand this? समझ में आ गया क्या? नहीं, बाउंसर गया, बाउंसर गया। थीटा का वैल्यू आपने बराबर बोला 0 to 180, लेकिन cos थीटा विल गो फ्रॉम -1 to 1 या 1 to -1, लेकिन जब उसका स्क्वायर करूंगा, समझे ना। अगला क्वेश्चन, so taking into consideration this Brewster's law, from Brewster's law except for polished and metallic surfaces, मैंने आपको बोला था कि वो अंडरलाइन करने के लिए पॉलिश और मेटालिक सर्फेसेस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, बताया था ना मैंने आपको उस टाइम पे। द पोलराइजिंग एंगल, व्हाट डज दिस पोलराइजिंग एंगल डिपेंड अपॉन? IP इज द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। So what will be the answer here for question number 89? It depends on the wavelength and is different for different colors. Independent of wavelength, wavelength के बारे में ही बात कर रही है। अब ये जो अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो ऑप्टिक्स सीखा था, रे ऑप्टिक्स, तो उसमें आप लोगों ने द डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी देखा था। Shut up. तो आप लोगों ने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव, व्हाई डू वी सी द डिस्पर्शन ऑफ लाइट? आप लोगों ने देखा है द डिफरेंट कलर्स आर बेंट थ्रू डिफरेंट एंगल्स व्हेन दे आर एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। व्हाई? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर के लिए वो डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वो डिफरेंट होता है, बिकॉज कलर इज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? Isn't it? So what will be the answer here? It depends on the wavelength and it is different for different colors. That is the answer. Is that understood? यहां पर 12th में जो आपने सीखा है that it only depends on mu, but आपका 11th का जो नॉलेज है वो कहता है कि this mu is different for different colors. Is this clear to all? ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस will the light reflected from glass be completely polarized?
ग्लास का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, दैट इज 1.5। और अगर आप लोग इसको tan ऑफ IP पोलराइजिंग इज इक्वल टू म्यू, दैट मीन्स IP इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5 एंड दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखते हैं तो दिस एंगल इज 56.3 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ, तो वही तो आ गया ना, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 1 इज एयर, एयर क्या 2/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। अरे भैया ये ग्लास है और ये एयर है, दिस इज 3/2 अपॉन 1, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। इज दिस ओके? समझ में आ गया? इट्स गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर। Unpolarized light is incident on the plane glass surface. The angle of incidence so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. जब भी reflected and refracted ray perpendicular होता है तो जो reflected light होता है वो polarized होता है, completely polarized, and refracted light is partially polarized. Let me remind you about this what I told you yesterday कि इसमें whenever it is like this, जब ऐसा होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज होता है और रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, व्हाट विल बी द, दे आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर tan ऑफ IB इज इक्वल टू म्यू, दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है? दो चार क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज √3। √3 मतलब होता है म्यू इज इक्वल टू √3, दैट इज 1.732। The unpolarized light is incident on it at polarizing angle IP. I is equal to polarizing angle IP. The angle of refraction is, देखिए tan of IP is equal to mu, but mu is also equal to sin I upon sin R. Correct ना? Tan of IP is equal to mu, therefore mu is also equal to sin I upon sin R. ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, ये डायग्राम, if I'll take the diagram from there, if I'll take this diagram over here, ये नो, इसी को तो उन्होंने IP बोला है ना, दिस इज इंटरफेरेंस, दिस इज IP, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज थीटा आर, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है उन्होंने, थीटा आर ही पूछा है उन्होंने, बट आई नो दैट, एंड उन्होंने ये बताया है दैट दिस, इसका जो म्यू है वो है √3। तो आई यूज द ब्रूस्टर्स लॉ फॉर दिस, tan ऑफ IP इज इक्वल टू √3। तो ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका tan रेशियो √3 होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसे 60 डिग्री। अब मुझे बताइए, अगर ये है पोलराइजिंग एंगल तो ये भी तो पोलराइजिंग एंगल ही हो सकता है, इसे मैं थीटा बी बोलूं, ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल, बात तो एक ही है। ये रुको ना, तो ये प्लस ये इज 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 90, ये 180 डिग्री है, तो दिस प्लस दिस इज 90। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो आई विल से दैट IP प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं थीटा आर बोल दूं या व्हाटएवर, इज 90 डिग्री, IP is 60, तो what will be the refraction angle? 30 degree. That's the answer. Is this clear to all? Doubts there? 96. अगला वाला। The velocity of light in the air, this is c, and that in the water, this is velocity in the water. The polarizing angle for incidence is, IP पूछा है। देखिए 1 mu 2
या a mu w इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, सही है। बट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ IP ना, करेक्ट ना। तो सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा बताइए, C is 3 into 10 to the power 8 and VW is 2.2 into 10 to the power 8 is equal to tan of IP. This is gone. So 30 upon 22 is tan of IP. और कितना आएगा, ये अपने को कैलकुलेटर से करना पड़ेगा शायद। We'll have to do this with the help of calculator. 26. This is 1.36 almost. और tan इनवर्स इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा या तो फिर लॉग टेबल से, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 53.74. या 3/2 का 56 होता है और इसका 53 आएगा, विच विल बी द नियरेस्ट आंसर वी कैन से, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 1.5 3/2 जो है वो 56 हमने लिखा था लास्ट में, और ये उसका नजदीकी है तो इट विल बी 53.74. या दैट्स करेक्ट. अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इट सेज when the angle of incidence is 60 degree on the surface of a glass slab, it is found that reflected ray is completely polarized. Reflected ray जब completely polarized होता है, then polarizing angle, that is angle of incidence plus angle of refraction is equal to 90 degree. सही है, तो इन्होंने यहाँ पर इसको ये 60 डिग्री बता दिया है. तो what will be the angle of refraction? The velocity of light in the glass is, ये पूछा है. तो आप ये भी बोल सकते हो कि in this case Brewster's law is applicable, so tan of IP is equal to mu, and mu is equal to speed of light in the air divided by speed of light in the glass, velocity in the glass. Are you understanding what I am saying there? Now tan of IP कितना है, IP is equal to 60 degree, इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी, this is IP. So what will be tan of IP, tan of 60, tan 60 कितना होता है, tan 60 is equal to √3, करेक्ट ना, is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by velocity of light in the glass. So what is the velocity of light in the glass, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, 3 upon √3 is √3 into 10 to the power 8, or that is 1.732 into 10 to the power 8 meter per second. So what is the correct answer here? B is the correct answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? Now before I go for this, we have studied in 11th standard. 11th standard में हमने देखा है total internal reflection. Total internal reflection, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि भाई if this is the water surface, जिसमें the angle of incidence, there are two conditions to be, the light is going from denser medium to the rarer medium, first thing, and the angle of incidence is I is equal to the critical angle, then the refracted light will go in this way, ऐसा जाएगा वो, ठीक है, that means the angle of refraction is equal to 90 degree, isn't it? So in this case what formula we have the formula that sine of IC is equal to 1 upon mu, ये formula है, sine of IC is equal to 1 upon mu, ये formula है, therefore ये formula अपने को use करना है. Now let's come to this, the critical angle of certain medium is sine inverse of 3/3, 3/5, मतलब IC is equal to 3 upon 5. What is the polarizing angle of the medium? IP पूछा है उन्होंने, बहुत सिंपल है, ये वाला 11 का फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो उन्होंने दिया है IC is equal to sin inverse of 3/5, IC is equal to sin inverse of 3/5, that means what is sin IC is equal to 3/5. अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो what is mu is equal to 5/3,
correct? But according to the 12th standard, Bristol's law, mu is also equal to tan of IP, correct? Therefore, what is polarizing angle is equal to tan inverse of 5/3, and that's the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? ठीक है? I'll go for the next question. Question number 99. Light is incident on the glass surface at polarizing angle IP is equal to 57.5 degree. ठीक है? IP. Then the angle between the incident ray and the refracted ray is. अब इसमें 205. तो यही डायग्राम में जो पहला वाला डायग्राम है उसी को ले लेता हूं. कहां गया? Yeah, this diagram. I'll take this diagram. Yeah. इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं, कौन सा उन्होंने एंगल पूछा है रे? देखिए ये 57.5 डिग्री है. तो tan ऑफ IP जो हमने देखा था ना प्रीवियस सम में, अगर आपको याद होगा कि इसके लिए कहाँ गया था हमने, ये tan ऑफ 1.5 is 56 डिग्री. तो 56-57 डिग्री के जब करीब आता है वो, तो वो ग्लास ही होता है ना? इन्होंने यहाँ पे क्या ग्लास दिया है, क्या दिया है? हाँ, ग्लास ही दिया है. तो ये 56-57 डिग्री मतलब ये पोलराइज्ड वाला केस है. पोलराइज्ड वाला केस है मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये श्योर है? बराबर है क्या? दिस इज द केस ऑफ ब्रिस्टल्स लॉ. सो दे से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 57.5 डिग्री. तो ये भी 57.5 डिग्री ही होगा जी, और ये 90 डिग्री होगा. एंड व्हाट इज दिस एंगल? 90 माइनस कितना आएगा वो? 32.5. करेक्ट ना? दिस एंगल इज 32.5. तो बराबर है ना यार? देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे. तो कौन सा एंगल पूछा है? दे आर आस्किंग ये वाला एंगल टोटल. समझे? दे आर आस्किंग दिस टोटल एंगल. तो ये जो द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये जो एंगल है वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड दैट एंगल इज गिवन बाय क्या होगा? रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू, बोलो ना यार, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 57 कितना आ गया? प्लस 90. 115 प्लस 19, 90 प्लस 90 कितना आएगा? 205. समझे? समझे? अच्छा, यहां पर गलती से कोई आंसर अगर वो 90 डिग्री देते हैं ना, तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि एंगल बिटवीन, हाँ एंगल बिटवीन मतलब यही पूछेंगे 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? ठीक है. लास्ट क्वेश्चन.